Okay, hi everyone. So today's topic of group discussion is going to be quite simple and interesting, and it is going to be regarding, is India ready for electric vehicles? Is India ready for EVs? And you have to justify it out that either you can say yes, India is ready. You can say no, India is not ready for this. Now it is group discussion. What happens in group discussion is one of you will come forward and introduce the topic. Like, hi everyone. The topic of today's discussion is a kind of a question, and we have to justify it with an answer. Is India ready for it, or is India not ready for it? So accordingly, we have to see that electric vehicles, recent years, we have seen that quite a boon has been there in electric vehicles. And we have seen in many households, electric vehicles have taken their places. But is India's roads or everything ready for that? So according to me, India is ready. Say yes. Why you think India is ready? Justify your answer in one liner. If no, why you think India is not ready? Now, in yes, you can say it out regarding cost efficiency. It's very cost effective. You can say budget friendly. Your pollution, India can get pollution free. Some kind of a statements like that. You could discuss number of dimensions in that run. If you think India is not ready, very first factor, if you will say, is that the roads, the transport, the medium. India's roads are not very, you can say, clean and very soothing for electric vehicles. Like I just gave you one dimension, and there are a number of dimensions why we still feel India is not ready for that. I mean, you can say service centers and all. They're repairing. The electric vehicles' life is very less as compared to the other vehicles. So you have to justify it accordingly. Now, second thing, there is no barrier of language. I'm speaking in English if I'm finding it comfortable. You can go for English, Hindi, a mix of it. Any language you can go for that by conversing or delivering your point. Then do not focus in cutting the person again and again. Be very attentive. Suppose one person told that, yes, you can change your statement also. Suppose you started that India is ready for it. You can even note down some points where you say India is not ready. Because it is a group discussion, you can move from one statement to another. There is not a debate that you have to fix yourself to one point. Last but not the least, do remember it's not about speaking more, but speaking quality points over quantity. Okay, so only speak when you are very, you can say, sure, you have good examples. Facts, only present the facts when you are clear with the depiction of the numbers. Then go with that. Okay, you guys get 3 minutes to note down the, you can say, jot down your points. According to you, whatever comes to your mind, jot down those points. It's 112 by my side, 115, I'll start. The GD varies from the time variations, 8 minutes, 10 minutes, 12, 15, 35. It varies. We will have a very, you can say, simple one where we will keep it off 10 to 12 minutes, right? Now your timer starts now. Anyone who has got any doubt? Clear? Chalo. All the best, guys. Note down your points first. Hey.
Okay, so I guess the time is 3 minutes are over. Now So, let's give a chance to who wants to introduce the topic. ma'am, me. You're ready? You're doing it for the first time. Yes, ma'am. Okay, so Prani will introduce the topic and conclusion was never before. It's not in the conclusion. Raju, you want to do it? Or Dheeraj? Raju, okay? Yes, ma'am. Okay, so let's Raju do the conclusion, and I think introduction can be done by Prani. Go ahead, guys. Good afternoon, all of you. First of all, my name is Pranay Singh, and today's the topic of discussion is India ready for electric vehicles or not? As we have seen, there has been a boom in this EV technology all over the world right now, and people are actually switching to EVs very often. And there are some good aspects to it also, like it has been seen that they are better for the environment, and in case of two-wheelers, they are actually cheaper. In four-wheelers, there is a matter of the branding and all. तो उसमें ऐसा है कि कुछ ब्रांड्स होते हैं जो काफी चीपर ईवीज भी देते हैं, कुछ काफी एक्सपेंसिव भी देते हैं, तो वो है. उसके अलावा उस पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी हैं, लाइक इंडियन रोड्स आर कंस्ट्रेंट टू दिस, एंड द सर्विस सेंटर्स इज आल्सो नॉट सेटअप. उसके अलावा चार्जिंग स्टेशंस अभी हमारे पास नहीं है. उसके अलावा जो ईवीज होता है इनका रिलायबिलिटी भी कम होता है. तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन in order to reach some conclusion for this answer. So I invite all of you to take part in this discussion. Yes, so I think India is ready for the EVs. Like we are building the ecosystem for the manufacturing of EV. Like we have companies like Tata and Mahindra, and Ola is also started manufacturing, and we are also uh, 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 importing companies from US like Tesla. Tesla is also building its factory in India. So we are developing the ecosystem, and people are also aware about the benefits of the EV. So I think the awareness is also in the people, and so I can say that India is ready for the EV. Yes, I agree with the Ayush. I think EVs according to इस me, मॉडर्न एरा में ईवी की रिक्वायरमेंट सभी जगह है. वैसे जैसे कि नेट जीरो एमिशन हम करना चाहते हैं, जो हमारा एम है, तो उसके लिए ईवी टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. तो ईवीज में क्या है कि इनकी इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, और इसकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस करनी होगी, ताकि जो इसकी एफिशिएंसी है उसको हम इंक्रीज कर सके. इसके लिए अवेयरनेस भी हमें. Yes, I agree with मुझे लगता है कि जैसे I agree गवर्नमेंट का भी देखें, गवर्नमेंट भी पुश कर रही है टुवर्ड्स point, ईवी, guys. क्योंकि But I अगर want देखें to add one गवर्नमेंट more point. सब्सिडी देती है जहाँ कोई बंदा ईवी व्हीकल परचेज करता है, तो लगता है गवर्नमेंट ऑल्सो पुशिंग, और गवर्नमेंट अपना जो पेरिस कन्वेंशन है उसके तहत भी नेट जीरो के थ्रू मूव कर रही है. तो लगता है कि इंडिया इज रेडी फॉर द ईवी. यस मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इसलिए रेडी है क्योंकि एक तो जो अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है इंडिया में, जैसे कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, जीरो एमिशन करना चाह रहे हैं हम, इंडिया को क्लीन कंट्री बनाना चाहते हैं हम अभी, एंड द कंज्यूमर साइड पे से भी बहुत चेंजेस हो रहे हैं. एक्चुअली द पीपल राइट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड आर वेरी अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट दे आर लिविंग इन. तो उन्हें भी पता है कि ईवी के बहुत सारे एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं. उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट की भी काफी पॉलिसीज आ रही है. हमने भी सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए भी बात करी है, अभी रिसेंटली हुई है. और जैसे आपने बताया था अभी कि टेस्ला के साथ डील हुई है. टेस्ला इज एक्सपेंसिव कार्स बनाते हैं वो, पर उन्होंने भी इंडिया के वेरिएंट्स के लिए कुछ ऐसा चीपर मॉडल निकालने का, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेने का सोचा है अभी. तो मुझे लगता है ये सब चीजें हो सकती है. Yes, also I agree with your point, guys. But I want to say one thing, that we cannot totally impose into the electric vehicle, because we are based on the batteries, and for batteries we need to import the raw materials like lithium and all from the other countries. So it is not beneficial for our country in terms of GDP and all that. Yes. So one more thing I want to talk, like the electricity which is coming to charge the EV are mainly in India are from coal-based power plant. So actually we are emitting carbon dioxide. So there should be the electricity must come from renewable sources. Then only we can produce less carbon dioxide, and the benefit of EV will then come. And okay, friends, I am agree with all of you, but there are some problems. India, हमारा भारत कंट्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट कर रहा है. इसके लिए सरकार, काफी प्राइवेट कंपनियां एंड
अदर कंट्रीज कंपनियां भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं, और इसमें हमारी गवर्नमेंट भी लोगों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल अफोर्ड करने के लिए सब्सिडीज भी दे रही है। लेकिन कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम कंप्लीटली ऑल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसका मेन फैक्टर आता है कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि कॉस्ट इतनी हाई है तो जिससे हर कोई व्यक्ति या आम पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और कॉस्ट किस वजह से है, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो बैटरी बेस्ड व्हीकल या स्टोरेज इलेक्ट्रिक स्टोरेज व्हीकल्स, और हमारी दूसरी मेन प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बिना हम व्हीकल्स की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम्स है। और दूसरी प्रॉब्लम्स है हमारी, एक चीज और मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे कि ईवी का जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक्चुअली में जल्दी पकड़ लेते हैं, तो अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिक बहुत ये भी है, रिलायबल नहीं है, सेफ्टी क्योंकि फैक्टर भी है। वो आग पकड़ लेता है, वो सेफ्टी की यस, अभी जैसे कि रिसेंटली ओला मैं इसमें एक और ने पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि लॉन्च किया था, हमने जो देखा है कि टू व्हीलर लॉन्च किया था जिसमें बहुत सारे केसेस आए थे ऐसे ब्लास्ट के और आग लगने के। तो ये थोड़ा सेफ्टी रीजंस होता ही है ये है। और उसके अलावा जो हम बैटरी यूज करते हैं, मैं इसमें एक और हमारा ईवी का मेन मोटिव ये होता है कि वो काफी एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है और पोल्यूशन उससे कम होने की चांस, बस जो बैटरीज होती है वो एक्चुअली इतनी एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं Yes, yes. Also, I agree with you, Pranay, but India currently India certainly doesn't have the lithium totally refining technology, so we are importing yes. battery, and also the refining of lithium emits carbon dioxide. So there must be some carbon capturing technology there also, so that the complete for manufacturing of EV must be net zero. So that is important. Also, I guess yeah, I want also to add one more point here. suddenly हम अभी इंडिया totally में अगर हम लोग electrical देखें vehicles कि पर जो depend नहीं हो सकते, but मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आप देखेंगे वो उसमें भी रेडी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जो इंजन्स होते हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड इंजन्स हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को इंजन्स ईवी के लिए अलग टाइप के इंजन्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो कि काफी हम लोग के लिए चेंज आएगा, सडन चेंज, जो कि अभी इंडस्ट्री अडॉप्ट करने के लिए फिलहाल की हालत में नहीं है। I personally agree with you. Like EV only have one electric motor. So the main thing is the lithium battery part. जैसे कि जो ईवी का जो डिजाइनिंग होता है, उनका चेसिस जो होता है, उनका बॉडी जो होता है, दे आर नॉट एक्चुअली वेरी ग्रेट, वो उतना होता नहीं है। जैसे कि सेफ्टी टेस्ट में भी देखा जाए तो जो बड़ी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़ी कंपनीज हैं, उनकी कार्स भी सेफ्टी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ईवीज में, क्योंकि उनका जो डिजाइनिंग और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उस तरीके से करना पड़ता है। I think gradually हम इस पर के रोड्स और डिपेंड हो सकते हैं, सडनली हम थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इंडिया में भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ईवी के लिए रेडी है, कि हम देखें जगह जगह पेट्रोल स्टेशन तो लेकिन जगह जगह रिचार्जिंग स्टेशन नहीं है कि जहाँ पर अपनी व्हीकल चार्ज कर सके। और इसलिए अब मुझे लगता है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि इंडिया ईवी के लिए रेडी हो। Yes, but we are building, like many of the energy companies are small vehicles पर हम जैसे कि लिथियम आयन स्टोर जम्मू कश्मीर में मिले हैं लिथियम के, तो उससे हमारी आने वाली इंडस्ट्रीज में और हमारी गवर्नमेंट भी नई टेक्निक्स अडॉप्ट कर रही है, इससे आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम लोगों के लिए उतार पाएंगे। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा स्मॉल व्हीकल्स पर कर सकते हैं, जैसे कि ई बाइक होती है, ई रिक्शा जो ऑलरेडी लॉन्च हो रखा है, ई रिक्शा काफी टाइम पहले लॉन्च हुआ था, जो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, तो काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है उससे। और हम बात करें दिल्ली में जैसे डीटीसी बस है, इलेक्ट्रिक बस है। I would like to add one more point, like हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इन कंट्री मेजरली ट्रक से होता है, पर ट्रक में अभी कोई टेक्नोलॉजी ईवी का आया नहीं है, और वहाँ पे ही सबसे ज्यादा डीजल टेक्नोलॉजी तो आ चुका है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं है। अभी रिफाइनमेंट नहीं हुआ, इफिशियंसी ज्यादा नहीं है, तो वो एक चैलेंज पार्ट है। लाइक अगर हमारा ट्रक भी इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाए तो हम लोग बहुत कम कार्बन इमिट करेंगे, तो वहाँ पे रेलवे को देखें, जो रेलवे पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रेलवे का अबाउट 80 to 90% जो रेलवे अभी वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क कर रहा है, तो इट आल्सो व्हीकल विच इज ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इंडिया, हम देखें कि रेलवे में इंडिया ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट करा है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को टू बिकम इलेक्ट्रिफिकेशन। आई थिंक दैट वाज अ गुड पॉइंट। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी कोल लाइंस थी या कोल रेलवे लाइंस थी, तो कोल इंजन थे, उनको ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया है, और आगे गवर्नमेंट भी करने जा रही है।
मेट्रो का भी अच्छा एग्जांपल इसका, रेलवे का भी। ऐसा गवर्नमेंट रोड बनाना चाह रही है कि जहाँ पे प्रॉपर जो ट्रक होना वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, ताकि यूरोपियन स्टाइल में, ताकि कार्बन एमिशन ये भी हो सकता है जैसे स्पेशल एक्सप्रेस वे, हाईवे एक्सप्रेस वे है, इसी की तरह हो सकता है। और जो एक पॉइंट इसमें शायद हमारी सरकार भी कुछ काम कर रही है, हो सकती है वो एक्चुअली ये है कि जो इनका जो सर्विसिंग कॉस्ट और सर्विस स्टेशंस का जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज नहीं होते हैं, पर जो चार्ज जो हमारे सर्विस स्टेशन है उसका बहुत प्रॉब्लम है इंडिया में, वो अभी एक्चुअली सेटअप हुआ नहीं है। जो परसेंटेज है वो इतना परसेंटेज नहीं है। हाँ, इतना परसेंटेज नहीं है। और रूरल एरिया में तो बिल्कुल भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जगह जो अभी वैसे तो है नहीं, हमारे इंडिया में अभी चार्जिंग स्टेशन ज्यादा है नहीं, पर जो भी है उनकी भी जो अभी जो नए भी बने थे उनका भी इफेक्टिवली वो इतना ढंग से उसका मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारे पास किसी भी फील्ड में इतना हाई लेवल पे हमारे पास चीज अवेलेबल है नहीं। I think I should also add one more point to this, that the requirement is different from different locations of the country. For example, if you take Delhi, there is EVs are very important because of pollution. When the winter is comes, the traffic jams will face, and you can also the availability of charging stations and service centers in metropolitan cities are very easy. So that one point, according to me, you can implement this in the metropolitan cities, and you have a challenges also in this EVs. Yes, I also agree with Raju. I agree with you. I also agree with Raju. जैसे कि I agree that he is saying कि हम metropolitan city में पहले इसे implement कर सकते हैं, और ऐसा होता भी actually as a pilot project we can our government can took the initiative to try implementing it in our cities like Mumbai and Delhi and Bangalore, in which the people are well established. वहाँ पे पर कैपिटा इनकम लोगों की ज्यादा होती है, तो मुझे लगता है वो अफोर्डेबिलिटी भी ज्यादा रहेगी वहाँ पे लोगों के पास। लेकिन जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे इतनी ज्यादा, हाँ, रूरल एरिया में मुझे लगता है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे you already got digressed from the topic, because the topic was, is India ready? Or I am talking about the advantages and disadvantages. That is the slightest thing you could do, and everyone got digressed. Several number of mistakes you're committing in an easy topic right now, and I'm going to guide you. What were the things you had to mention? What was the way you need to mention, and how you actually did it? There are 3 different domains of it, and this was the slightest error which a person has to do is India ready for it? Or advantages and disadvantages, how government can make ready. You came to different sector. Clear, all of you? Yatindra was just watching the show, right? Yatindra did not speak much today. Why, Yatindra? I cannot hear you. Ma'am, this is my first time for group discussion. Yeah, because there are, I think Pranay also, I gave a chance to Pranay to introduce also. But there were also several mistakes, because that is not the way actually group discussion that has been done. The pointers have to be weighed off, right? And same Jitendra, because you 3 were new, there needs to be a guidance in that case. Okay. Now, first thing, before I come to each one of you, let me tell you one thing. When I am talking about the problems in group discussion is when you get digressed. And digressed is because you choose an easy path to just say your statements. That should not be there. Okay. So what is the first thing? What are the, you can say, it's not about advantages. Is India ready? Why India is ready, you think so? Tell me those pointers. Think about it. Tell me first point which you choose. Pollution, ma'am. Pollution in metropolitan city. The way we needed to say this point is that we are witnessing a lot of climate change right now, right? You might have seen about that there have been landslides going in Himachal, and lots of, you can say, destruction has been caused. This is particularly due to climate change and the massive pollution. Delhi has also tried even odd that number ratios and everything like that. So climate change खत्म करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें चाहिए है, और इंडिया रेडी है EV व्हीकल्स के लिए, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, जैसे कंपनीज, आई थिंक आयुष ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, इट वाज कि जो कंपनीज को, आई थिंक ही टोल्ड इन कंपनीज आर देयर, इकोसिस्टम डेवलप हो सकती है, लोगों में भी अवेयरनेस है, एंड द कंपनीज आर रेडी टू टेक द प्रोजेक्ट्स. Mahindra, any company you could talk about where the person that company could lead to EV system. कि हमारे पास जो मैन पावर है, that is good. I'm not talking about manpower as an individual one, but as a person. जैसे अब iPhone से being built 15 was being built in India, right? Why? Because the initiative has been taken. यहाँ पे companies बहुत अच्छे से promote कर रही है.
अवेयर कर रही है, तो हमारे पास वो लेबर है कि हम कर सकते हैं, इसलिए इंडिया रेडी है। थर्ड पॉइंट बताओ मुझे, हमारे पास पैसा, फंडिंग, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, सब्सिडी, गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है ईवी के परचेज। ये तो एक बेनिफिट सरकार क्या कर रही है, सरकार अभी हम सरकार को नहीं ला रहे हैं, अभी हम ला रहे हैं कि इंडिया को क्यों रेडी होना चाहिए, इंडिया किस तरह से रेडी है। हमारे पास पैसे की कमी इन द टर्म्स ऑफ ह्यूज ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है हम, जिसकी वजह से हमें क्या है, ऑयल जब मंगवाना पड़ता है, सपोज यूएई मंगवाना पड़ रहा है, कहीं से मंगवाना पड़ रहा है, बहुत फंडिंग चेंज हो रही है, सब रेज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें क्या है, ये हमें सस्ता पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, पैसे को तो हमें कटौती करनी है, दैट इज द बेस्ट वे, इसलिए इंडिया रेडी है ईवी के लिए। और बताओ क्या हो सकता है, टेल मी अबाउट दिस थिंग, और कैसे बेटर है। अगर डिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर हो सकती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है, मतलब ये तुम्हें जनरिक चलना था, ना कि सरकार किस तरह से सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, एडवांटेजेस क्या है, उधर नहीं जाना अभी रुक जाओ उस साइड पे। उसके बाद क्या क्वेश्चन था, इंडिया रेडी क्यों नहीं है। सबसे लीस्ट चीज, तुम्हारे घर में बिजली जाती है, कभी ना कभी तो जाती होगी ना। You might have heard about two things which are being practiced in India, power theft, power cut. ये कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक इंडिया में पावर थेफ्ट, क्या होगा, चोरी करनी शुरू कर देते हैं बिजली, कितनी वो आती है कि मीटर बाहर लगवा लो, ये कर लो, जब से चोरी हो रही है बिजली की, तब से तो कभी भी नहीं हो पाएगा, ईवी व्हीकल्स कैसे डेवलप हो पाएंगे, राइट। और अगर पावर कट हो जाएगी तो तुम चार्ज कैसे करोगे, क्योंकि पावर कट वाला भी सॉल्यूशन कहीं पे भी ये नहीं है कि यहाँ पे कभी पावर कट ही नहीं होगा। ये चीजें देखनी थी, किसी ने भी बोला, नो वन टोल्ड दिस पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया में क्या अभी कमियां हैं। रोड देख लो, जाके बाहर जाओ, रोड्स जाओ, ठीक है, लग रहा है इस चीज पे बाहर की रोड देखो और इंडिया की रोड देखो, यू थिंक योर व्हीकल वुड सर्वाइव 3 years, अगर लाइफ टाइम है ना उसकी लाइफ लाइन, तो उसकी और कम हो जाएगी, बिकॉज अवर रोड्स आर नॉट गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास बेटर, लोगों को तो यस मैम, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी अभी आता है वो भी तो अभी मेनली कोल बेस्ड पावर प्लांट से आता है ना, तो उधर इमिशन कर देते हैं। I'll come to individual ones, कई पॉइंट्स आयुष के अच्छे थे, जैसे मैंने भी बोला, मुझे अवेयरनेस कंपनीज वाला, कुछ तुम्हारे वैलिड है, बट एक बोलने का, जब मैं बोलती हूँ ना, तरीका होता है। तुम में से किसी ने ये चीजें बोली कि इंडिया क्यों नहीं रेडी है, क्योंकि मैम यहाँ पे पावर कट्स बहुत है, पावर थेफ्ट बहुत है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो वो भी हमारा भी ओवर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, अगर आप मैक्सिमम स्पीड भी जाओगे ना मैम, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की देखते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड है वो जो दूसरे हम यूज करते हैं व्हीकल्स, उससे कम ही है। तो इवन दैट इज एन इशू, कि लोगों को ट्रैवल करना है, कुछ करना है, दैट विल काउंट एज अ लो कॉस्ट फॉर द पीपल। तो लोग क्या किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग वो इफेक्टिव बनाते हैं कि मैं कितना जा सकता हूँ, एवरेज स्पीड करते हो ना तुम लोग काउंट, एवरेज स्पीड तुम्हारी उसकी व्हीकल्स की कम आती है, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। तो पावर थेफ्ट, पावर कट, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन द लेबर वंस, लेबर का किस तरह से आ जाता है, इस सारे डायमेंशंस को मेंशन करो, डाइग्रेस मत उन्हें करो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, ये कंक्लूजन में आएगा, ये इंट्रोडक्शन में कभी नहीं आ सकता, और ना ही तुम्हारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, राइट। सो दिस इज अ मिस्टेक व्हिच इज बीइंग डन इन ग्रुप डिस्कशन। नाउ कमिंग टू ईच वन ऑफ यू, बिफोर आई टेल इन दैट केस, अगर तो तुम्हें नंबर फिगर्स याद थी कि कार्बन एमिशंस 37% कुछ अप्रोक्सीमेट रिड्यूस हो जाती है when we use electric vehicles, mean to say in the conservation, energy conservation किसमें बेटर है, वो तो बेटर ही होगी ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, वो सारा आ जाएगा कि क्यों रेडी है इंडिया। क्लियर हुआ डिफरेंस ये पहले, बिफोर आई कम टू ईच वन ऑफ यू द फीडबैक्स, क्लियर। अब when it was started, Prane, it was your first time, that is fine, but कभी भी बहुत ज्यादा पॉइंटर्स ग्रुप डिस्कशन में स्टार्टिंग में नहीं दे सकते, we cannot bombard the pointers. Group discussion means you are talking about one thing at a time and you are giving me one pointer at a time. Suppose you discussed about the environment friendly thing, that कि यहाँ पे environment friendly हो जाएगा, climate change बहुत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि EV vehicles के लिए इंडिया रेडी है, climate change हमारा improve हो जाएगा, then other person would pop it, right, we have seen the landslides and we have seen, मतलब उस टॉपिक के तुम्हें डिस्कशन करनी होती है, तुम्हें कट ये नहीं होता कि मैं एक डिबेट की तरह सारे पॉइंटर्स बोल दूं, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट, क्लियर। और आपने हर पॉइंट में यही किया है, आपने जितने भी पॉइंट्स दिए ना, आई थिंक हर पॉइंट में आपने 4 पॉइंट्स बोलने की कोशिश की है, which is not an appropriate way in a group discussion, right? That is why I wanted you to see it out कि कैसे होती है and then start a group discussion. Clear about this? Okay. उसके बाद आयुष का पॉइंट था, आयुष you had a good pointer, but उसको थोड़ा सा बोलना इम्प्रूव कर सकते थे, जैसे आपने बोला कंपनीज हैं and their ecosystem is improving, awareness is being spread, so वो सारा पॉइंट बहुत अच्छा था, it was a good one. Third one was of Ajay.
अजय, रिक्वायरमेंट लाइन गलत है। रिक्वायरमेंट होना जरूरत है हमें ईवी व्हीकल्स की, और इंडिया रेडी है, दो डिफरेंट चीजें हैं ना ये। हमने बात किस पे करनी थी? रेडी है या नहीं। हाँ, और हम किस पे पहुंच गए कि हमें जरूरत है। वो वही डायमेंशन, वो गलत निकल गया मैम। हाँ वही तुम्हें मैं वही बोलूँ ना, डाइग्रेस मत हुआ करो, फ्लो। जब मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ लिखने के लिए, अपना एक अच्छी हेडिंग और अपना सब, दैट इज कॉल्ड हेडर और फुटर बना के कर लिया करो। जब तुम्हारा हेडर और फुटर बन जाएगा ना, कोई भी पॉइंट जोड़ना उसी के बेसिस पे करा करो, नहीं तो फ्लो फ्लो में तुमसे गलत निकल जाता है। ठीक है, वो मिस्टेक्स अवॉइड करो। उसके बाद आई थिंक धीरज का था, धीरज इंडिया इज रीजन। धीरज पॉइंट्स अच्छे नहीं थे, पहले जस्टिफाई कर दिया फिर इंडिया रीजन है, सेम चीज। ठीक है, और थोड़ा सा आई वुड नॉट हेल्प यू मच बिकॉज ऑफ द नेटवर्क में भी इट वाज नॉट वेरी, है ना, जीटी में ध्यान रखना भी। प्रणय का पॉइंट था, फिर प्रणय ने 3-4 पॉइंट्स, टेक्निकल एडवांसमेंट, एनवायरमेंट रिलेटेड बेनिफिट्स, कंज्यूमर साइड की एक पे कोई फोकस ही नहीं कर पा रहा। कभी भी जीडी में कोशिश करा करो, जब भी तुम पॉइंट देते हो उसको अच्छे से एग्जांपल के साथ दे दो। आई टेल यू व्हाट वर द गुड पॉइंट्स। आयुष का पॉइंट बहुत अच्छा था, रामादान ने ज्यादा नहीं बोला आज, एक पॉइंट दिया था आई थिंक, बेस्ड ऑन बैटरीज इंपोर्ट फॉर मटेरियल्स जीडीपी पे वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो पॉइंट अच्छा था। मतलब दिस इज द वे यू टॉक अबाउट अ पॉइंट, यू गिव अ गुड एग्जांपल ऑफ इट एंड देन यू विन द रेस। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। उसके बाद आई थिंक आयुष का पॉइंट था इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग द बेनिफिट विल कम, वही एंडिंग कैसे की आयुष ने, बेनिफिट आएगा इससे अगर हम यूज करेंगे। हमें ये नहीं करना बेनिफिट किससे आएगा, डिसएडवांटेज किससे आएगा। तुम बीच में कभी एडवांटेज डिसएडवांटेज में चले जाते थे, कभी इंडिया, किसी ने ये बोला इंडिया को जरूरत है नहीं है, इस तरह से तुम्हें ये लाइंस नहीं बोलनी है। ठीक है, आई थिंक इंडिया हैज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, द यू माइट हैव सीन, आप एग्जांपल्स देते, आईफोन 15 कहाँ बिल्ट हो रहा है, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ओनली। व्हाई? बिकॉज़ द कंपनीज मैम एक्चुअली मेरा ये यस मैम मेरा एक्चुअली ये पॉइंट था कि अभी जो हमारा वही एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उसको पहले ठीक करेंगे तभी ना रेडी होगा इंडिया। दैट इज चैलेंज पार्ट। अभी सॉल्यूशन नहीं बताना आयुष, जब सारे पॉइंट हो जाएंगे ना, अभी सिर्फ कमियां खामियां बताओ कि हमें क्यों लगता है रेडी है कि नहीं है। तुम ये बोलो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आई डोंट थिंक दैट इंडिया वुड बी एबल टू मीट अप आउट। ठीक है, तो ये देखो वही पॉइंट अच्छा हो जाता। व्हेन आई टोल्ड यू योर वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज वेरी गुड, दैट वाज एक्चुअली गुड एंड इट हैज कम अ लॉट वे। मतलब आयुष का पहला देखो जीडी, और अब देखो, अब उसके पॉइंट्स में थोड़ा सा क्रक्स होता है, अच्छे पॉइंट्स होने शुरू हो गए, पर भैया अभी और थोड़ा थोड़ा बी वेरी सटल इन योर वे ऑफ स्पीकिंग। क्लियर? उसके बाद जितेंद्र ने सीधा प्रॉब्लम्स पे ही मैन्युफैक्चर कर दिया, प्रॉब्लम्स आर देयर, प्राइवेट कंपनीज अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी, सीधा सब्सिडी पे टारगेट नहीं करना ना अभी हमने। ठीक है, अभी सरकार को नहीं बीच में लाना, सरकार तो कोशिश कर ही रही है। सरकार तो अब ये भी बोल सकते थे, जो ओला के अभी तुम्हें टोल टैक्स होता है ये दैट इज वेरी फ्री, पार्किंग फीस इज फ्री, मतलब गवर्नमेंट तो प्रमोट कर रही है ईवी व्हीकल्स को, क्यों कर रही है वो अलग आएगा, वो क्वेश्चन अलग होता है जीडी का। व्हाई गवर्नमेंट इज बीइंग एंथुसियास्ट इन प्रमोटिंग ईवी व्हीकल्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईवी व्हीकल, व्हाई इट शुड बी प्रमोटेड और नॉट, वो प्रमोटेड और नॉट में आ जाता। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। ग्रुप डिस्कशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट फर्स्ट, आराम से शांति से डायमेंशंस देखो, देन स्पीक अबाउट इट। नहीं तो सारी तुम्हारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, उसी साइड पे एलिमिनेट होना शुरू हो जाओ। क्लियर हो ये चीज? वहीं से गलत था। एंड देन धीरज ने सेफ्टी वगैरह वाला स्टार्ट कर दिया, सेफ्टी एंड ऑल दैट कम्स इन अ गुड पॉइंटर्स, एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है, वही आ गई ना चीज। तो इंसिडेंट बताओ कि वी हैव सीन लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स, इस तरह से बोल सकते थे कि हम फायर स्टेशन पे से देखते हैं, दे आर बीइंग मीटिंग अप इट आउट, है ना, प्रॉब्लम्स हो रही and there is a huge massive destruction which is going on. That is why I think India is ready, क्योंकि वो life saving से थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा। बट वो बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, जस्ट टू जस्टिफाई योर पॉइंट कि उस तरह से बोल सकते थे फिर इफ यू वांटेड। देन आयुष का कार्बन टेक्नोलॉजी इट वाज ओके। फिर जितेंद्र ने गवर्नमेंट अडॉप्टेड, अजय ने एम्प्लॉयमेंट पे टारगेट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट होनी नहीं होनी वो तो बेनिफिट्स पे आ गया। ये कर सकते हो कि लोग बहुत, मतलब द पीपल ऑफ इंडिया आर क्वाइट स्किल्ड, लेबर इज क्वाइट स्किल्ड, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, वो तो कोई भी चीज नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी होगी, वो नहीं बोलोगे आप। यस ठीक है, और राजू ने फिर मेट्रोपॉलिटन, राजू ने भी बहुत कम बोला, नॉट अ गुड पॉइंट राजू। क्लियर? सो वेयर यू एक्चुअली डाइग्रेस्ड, वेयर यू वर इन अ लीग, so only 2 pointers were good, that was of one was of Ayush, one was of Ramak, and that was related to the topic. एक दो पॉइंट और मैं बोल सकता हूँ, जैसे अभी हमारे पास इंडिया में ऑप्शन भी बहुत कम है ईवी का,
तो वो भी इंडिया रेडी नहीं है, क्योंकि 2-3 कंपनियां ही बना रही है, बाकी पेट्रोल डीजल में बहुत सारी कंपनियां है इंडिया में, तो वो भी एक हो सकता है। They could not even meet up the needs because people, अगर आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में जाते हो, लाइफ उसकी देखते हो, 3-4 साल लाइफ है, पीपल वुड वांट कि इंडियंस की ये सोच होती है कि एक टाइम इन्वेस्टमेंट करो एंड इट शुड रन लॉन्गरी गाइस वुड से, है ना कि शॉर्ट टाइम के लिए तुम गेम खेलते हो कभी। इट्स नॉट दैट यू प्ले, अगर आपके पास यू माइट हैव व्हीकल्स व्हिच माइट बी देयर फॉर 10 years, TVs they do not have a life because of many factors which I'm telling you. और कुछ उनके आप सर्विस सेंटर्स भी, जैसे आपने पॉइंट किया था, they were not very good there. Yeah. जैसे कि कॉस्टली बहुत होते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया की स्पेंडिंग पावर अभी कम है, तो अभी रेडी नहीं है इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो कॉस्टली होते हैं। की 2 व्हीलर्स की कम आती है उससे, अगर आप नॉर्मल देखोगे ना पावर वाली पे और दूसरी, तो ईवीज की कॉस्टिंग आई थिंक कम है। रनिंग कॉस्ट कम आती है, लेकिन जो परचेजिंग जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा, लेकिन रनिंग कॉस्ट तो कम ही होती है, लेकिन जो परचेज करते हैं वो काफी महंगी होते हैं कंपेयर टू डीजल या पेट्रोल। स्पीड पे जो मैंने बोला कि अगर आप मैक्सिमम स्पीड ऑफ ईवीज पे जाओगे टू द स्पीड ऑफ पावर, वो कम ही रहेगी उसकी, है ना, मतलब एवरेज स्पीड भी कम दे रहा है वो, प्लस लाइफ भी कम है, इन्वेस्टमेंट एक टाइम की है बट वो ज्यादा लॉन्ग रीड नहीं है, तो वो चीज से आप कंपेयर करके बोल सकते हैं, तब हमारी इन्वेस्टमेंट बेस्ड होती है अगर आप उसको काउंट इन करोगे। एक और पॉइंट है कि जो मैम लिथियम को रिफाइन करके जो बैटरी बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास नहीं है। बैटरीज आर वेरी लेस, मतलब अगर आप देखो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज मेंशन कर सकते हो। दैट इज व्हिच इफ यू आई एम टेलिंग यू, अगर फैक्ट्स जैसे 37% कार्बन एमिशन लिथियम आयन बैटरीज का आ गया, अगर तुम्हें पता है तो बोलो, नहीं तो सिंपल टॉक अबाउट यू कैन से द बैटरीज, तब नाम मत लो, अदरवाइज इट्स अ गुड पॉइंट इफ यू कुड मेंशन इट आउट, और ये बोला ही नहीं है। मैं वही तो बोल रही हूं, मैंने बोला था पर उस समय एक और लोग बोल रहे थे, ये बात मैंने बोली थी कि टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड बी वेरी अटेंटिव इन गिविंग द पॉइंटर्स के एग्जांपल साथ साथ में कोट करा करो, ठीक है, एग्जांपल्स किसी ने कोट नहीं किया, जेनरिक एग्जांपल्स, दैट वाज नॉट डन। मैंने एक पॉइंट बोला था मैम मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि मैन्युफैक्चरिंग अभी जो होती है मैम वो इंटरनल कंबशन बेस्ड होती है, जो तो हम लोग को पूरा अपना जो सेटअप होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री लेवल पे भी बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी इंडिया रेडी नहीं है। दैट इज गुड, मतलब मैंने बोला ना 2-3 पॉइंट्स जो उससे रिलेटेड आ जाते हैं। अब क्लियर हुआ किस किस डायमेंशन से हमने डिस्कस करना था, कहाँ गलतियां थी। यतेंद्र, यू गॉट समथिंग? यतेंद्र वाज जस्ट वाचिंग द शो कि कैसे करनी है जीडी, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड टुडे, राइट? कुछ नहीं बोले ना आज? नहीं आज कुछ नहीं बोला, आज सिर्फ देखा कैसे करनी है ग्रुप डिस्कशन, कुछ समझ आया? Got the pointers? इसको when the GD gets ended, it's not and it gets ended from my side. Your work starts. Take a notebook, take a small, you can say page, pen and paper note करके जो points हमने डिस्कस किए हैं, पावर थेफ्ट का किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, कोई पावर कट का किया, कुछ भी किया है, वो सारे लाइन बना के नोट कर लो, एंड इवन सर्च फॉर योर ओन पॉइंटर्स। टेक इट एज अ ग्रांटेड कि अगर ये टॉपिक आता है, इसको 2-3 डायमेंशन में देखा करो। व्हाट आर द एडवांटेजेस? Is India ready for it? What are the challenges which EV vehicles we might face in future? Why government is promoting EV vehicles? मतलब 3-4 सब सेक्शन से आपको ये टॉपिक को प्रिपेयर करना है। It is not always from one sided. I guided you some of the generic pointers. आप किसी में भी डाल सकते हो। Clear? ठीक है? Yes, And this we have done it. This is the easiest one. Pranay, Ajay, clear with all of you? Yes, ma'am. Pranay, तो next time ज्यादा pointers नहीं देने हैं, ठीक है? ओके मैम, क्लियर। और कंक्लूजन इट शुड मैम एक बार आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं बोल के, मतलब इसका क्या होना चाहिए था? Introduction could be like, good morning everyone. The topic of today's discussion is India ready for this IV vehicles or not? So accordingly, we have seen that since past years, we have seen a boom in the EV vehicles that India is accepting, and there is a large import of these sectors also. But today's discussion would be that everyone can go for an open view in it, what the government has been doing, what are the challenges we are facing, or what the challenges are, it has made easy for all of us. Now, according to me, I am in the favor of the statement. आप अपना favor, disfavor जो भी आप बोल सकते हो पहली लाइन में. And now I open the house for discussion where everyone can put up their pointers. That's it. Very simple one. सिर्फ पहले topic, एक generic सी line में introduction, फिर आप क्या feel करते हो, हाँ ना वो बोल दिया, and then open the house for discussion. These are the 4 pointers which you have to move for the introduction. Conclusion में कैसे बोल सकते थे? So we all had a good discussion where the statement was about two-sided. It was a two-edged sword. We can say it out like this way. We all know that there are some challenges, there are some negative points, positive points related to electric vehicles. But I would mention here that yes,
what we need to say, India will be ready soon. Even Modi government has been targeting that by 2030, India will be all in the mode where everyone will be using this digital India, or you can say digital India में बोल दो, electric vehicles will be using it out. तो उसके statement है Modi. अगर याद है तो बोल दो. नहीं तो you can simply say it out that soon we'll see in a few years we will be able to meet the challenges with the support of government, and India will be soon fully fledged ready, though there are some of the complications which are being caused. मतलब neutral ही ending होनी चाहिए, neutral ही introduction होनी चाहिए. Clear हुआ? मैम एक और पॉइंट मैं पूछना चाहता हूँ, ये हाइड्रोजन व्हीकल जो होता है वो ईवी में आता है या वो अलग व्हीकल है? क्योंकि उधर भी बिजली ही बनता है हाइड्रोजन से, वो अलग आता है, मोटर ही चलता है. हाइड्रोजन यूसेज अकेला नहीं आएगा ना, बेसिक जो आता है लिथियम आयन बैटरीज का यूसेज आता है. हाइड्रोजन इज नॉट, इट इज जस्ट अ पावर जनरेशन में आप कह सकते हो. हाँ वो मैम वो हाइड्रोजन फ्यूल हो गया वो तो. हाँ फ्यूल हो गया मैम, पर इसलिए उससे भी engine है बिजली मैम. बना के मोटर चला के ही गाड़ी चलती है ना, तो इलेक्ट्रिक तो व्हीकल ऐसे तो डीजल से भी बिजली बिजली तो बना के बनता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल करते हैं. व्हीकल नहीं ऑन गाड़ी बेस ऑफ चल तो इलेक्ट्रिकल मोटर एनर्जी से रही स्टोरेज. है ना. नहीं वो तो नहीं, वही क्वेश्चन है मेरा. ये बनेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाइब्रिड में, आएगा स्टोरेज हाइब्रिड में, ईवी व्हीकल्स हाइब्रिड में काउंट कर सकते डायरेक्टली हैं. हम चार्ज कर रहे हैं उसको. ठीक है, बस इसमें करना ज्यादा, इसमें वो नहीं करना कैसे जनरेट होती है बिजली, कैसे जनरेट करती है, उस पर इतना इन डेप्थ मत करो, वो नहीं पढ़ना शुरू करना अभी हमने. ठीक है, जनरिक पॉइंट इज क्लियर. The ones who are ready for Vitendra, Jitendra and Pranay. Any problem to you, three of you? ओके मैडम, बीच में एंट्री करते हैं तो जब ऐसा फील होता है कि रिफ्लेक्शन नहीं आता कि हम बोल रहे हैं कि हमारी वॉइस जा रही है या नहीं जा रही, तो ऐसा फील होता है, तो उसमें बीच में फिर रुकना पड़ता है. When you start it out, जब भी तुम बीच में पॉइंटर भी देते हो ना, you have to say, yes, I agree with your statement. Suppose Raju was speaking something. So Raju, I'm in support of this statement. Raju, I could not agree with you. मतलब I could not, आपको पहले चैनलाइज करना है, एक हेडर देना होता है जब भी बीच में कूदो. ठीक है, जब भी बोलना है बीच में तो you have to give a header. Then you give a pointer. Are you in a favor or you are not in a favor? And then give your statement. अगर पॉइंट अच्छा होता है ना, it will be weighed off. I'm telling you clearly. पर ये नहीं unnecessarily वो नहीं करना कि बस कुछ ना कुछ पॉइंट बोलना है. So just for the sake of speaking, do not speak. Try करो. It was the first one, so there will be mistakes. Yatendra watched it out clearly. Yatendra खुद participate करना next में. ठीक है, चलो. All the best guys, and now after 15 minutes